let's begin, guys. The word operations. Already since morning, many a times I have used this word, and I don't know maybe how many more times I will use the word operations. But let me tell you, if anybody is asking me what is operations, my answer is very simple. कि operations दिखता भी नहीं है, but anything what converts input into output, I repeat, anything what converts input into output is called as operations. I repeat, anything what is converts input into output is called as operations. So I have said it 3 times, and that is what is very, very important for you to understand. As I told you, operations is all around us. For example, every book you read, every video you watch, every email you send, every conversation you have, and every medical treatment you receive involves operation functions. Even the clothes we wear, the food we eat, you travel by a bus, train, or a metro, or a private cab, you sit on a chair or a sofa, or you access to internet or Wi-Fi, or you attend a lecture, you go for a walk in a garden, or maybe you play basketball, or maybe you play cricket. Everything has operations. So that was all about operations, guys. आगे बढ़ेंगे. Okay, is my speed all okay to everybody? क्या यही स्पीड पे चले? Everybody comfortable with the speed? सेजल बोल रही नींद आ जाएगी सर, थोड़ा फास्ट चलो. Any other feedbacks? Anybody feels I am too slow? पूजा, सलोनी, पूर्णिमा, पंकज, गौरी, पूजा से नो आई एम यू प्रॉपर. इससे फास्ट जाओगे तो बाउंसर हो जाएगा. ओके, मतलब सेजल तू एक काम कर सकती है, मेरा ऐसे फास्ट फॉरवर्ड पे डाल दे वीडियो, थोड़ा फास्ट हो जाएगा. बट ऑब्वियसली इट्स माय फर्स्ट क्लास विथ यू. यू ऑल आर न्यू टू मी, आई एम न्यू टू यू. सो थोड़ा टाइम लगता है ट्यूनिंग आने में, और जब तक ट्यूनिंग नहीं आता हम एक पेस नहीं पकड़ सकते. सो थोड़े टाइम के बाद मुझे भी समझेगा कि आपका आईक्यू लेवल क्या है. एंड वंस आई गेट द नैक ऑफ योर आईक्यू लेवल, देन आई विल टेक अप द पेस अकॉर्डिंगली. बट आई फील अभी के लिए फिलहाल तो
डीजल इंजन के जैसे बिहेव करना पड़ेगा, धीरे धीरे गर्म होना है, पेट्रोल इंजन के जैसे गाड़ी नहीं चलानी है ना। सो एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद द पेस, आगे बढ़े। लेट्स गो फर्दर। सो बाय द वे I come to a very important definition of operating system. I repeat, a operating system. You know, जब मैं systems की बात करता हूँ, so I learned systems way back in my early career while pursuing my chartered accountancy. और तब हम जब सिस्टम्स पढ़ते थे तब इंडिया में कंप्यूटर नए नए आए थे, जस्ट आए ही थे, तो मैंने तब से सिस्टम्स पढ़ा है और उसके बाद 16 साल सिस्टम्स पढ़ाया है। तो आई ऑलवेज बिलीव दैट वेन एवर वी कॉन्फिगर, लिसन टू द डेफिनेशन विच इज गिवन बाय द बुक, and then I will explain it in my way, that it is defined as a configuration of resources which are combined so that we can provide you with goods or services. That is operating system. Let me ask you a very simple question again. कैन यू, अभी अभी हमें मालूम पड़ा कि हमारा ये लेक्चर जो हो रहा है उसका ऑपरेशन मैनेजमेंट कौन देख रहा है? हु इज लुकिंग आफ्टर ऑपरेशंस मैनेजमेंट ऑफ दिस लेक्चर? नाउ डोंट फॉरगेट, वी हैव डिस्कस्ड इट राइट नाउ. Okay, we have Prankita ma'am as your answers. Very good. You know what? Now let me tell you one simple thing. My question to you is very simple. You know what I will call Harsh sir? मैं हर्ष सर को क्या बोलूंगा? Can anybody even guess? In my subject, what will I call Harsh sir? अरे बोलो यार, हर्ष सर के बारे में. करेक्ट राजू, डेफिनेशन देख के समझ गया बेटा, तू शार्प है. एंड आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड दैट हर्ष सर will be a operating system. Yes Nehal, sir will be a operating system. You know what? Why sir is a operating system? Let me tell you that. उन्होंने क्या किया मालूम है? उनको आपको एक सर्विस देना था. क्या सर्विस देना था? टीचिंग फॉर CMA. And he wanted to make sure that all of you clear CMA in one go. And not only clear, but with a very resound knowledge कि भाई तुम अगर गए ना इंडस्ट्री में तो तुमको कोई बीट नहीं करना चाहिए. देखो पास तो गधा भी हो जाता है. इंपॉर्टेंट क्या पता है? हमने क्या सीखा है? पास फेल इज नॉट इंपॉर्टेंट इन लाइफ. What is important is your knowledge, what you acquired in your student's life. So coming back to my point, that Harsh sir, why I call him as operating system, is that he wanted you to provide with the service of CMA coaching, for which he had to combine, I repeat,
he had to combine and configure. And here very important word which I will show you is a resource. Can you see the word resource? तो अगर हर्ष सर ऑपरेटिंग सिस्टम में, प्रंकिता मैडम अगर ऑपरेशंस देख रही है ये लेक्चर का, तो मैं कौन हूं ना? हु एम आई इन दिस डेफिनेशन? हु एम आई इन द डेफिनेशन? करेक्ट, आई एम द रिसोर्स. वेरी गुड हर्षद, आरती, राजू, रोशन, स्नेहल. Correct. Now tell me one thing, while taking admission for CMA, while taking, yes Purnima, you are also absolutely correct, while taking admission for CMA, आप सबने किन की शक्ल देख के CMA का एडमिशन लिया था? मेरी की हर्ष सर की? किसकी शक्ल देख के एडमिशन लिया था? तो आप बोलोगे सर आपकी देख के तो पक्का नहीं लेते. Okay, all of you agree? One side, confirm. क्या बात है? Now you know what? When he is the operating system, I repeat, when he is the operating system, he has to configure, I repeat the word, configure the resources. Now you know what is important is configuration. अगर हर्षद सर कॉन्फ़िगरेशन में मिस्टेक करेंगे तो उनका तो नुकसान होगा, वो होगा, सबसे बड़ा लॉस आपका होगा. So he has to be accurate in configuring the resource. You know what? He has to tell us as a resource what is expected from us. क्योंकि जब तक वो ऑपरेशन से कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा मैं क्या फंक्शन कर लूंगा. सो बाय द वे गाइस, मैं ओएस के रिलेटेड तो आपको 50 एग्जांपल दे सकता हूं, बट लेट मी गिव यू द बेस्ट एग्जांपल. अब 2 मिनट के लिए वापस हर्ष ट्यूटोरियल्स को साइड में रखते हैं. यू नो व्हाट, सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड आपने कहां सुना होगा? लेट मी टेल यू, आपने कहां सुना है? आप सबने ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना है, ओएस. इधर पीसी या लैपटॉप में सुना होगा, और अगर वो नहीं यूज किया है कभी तो मोबाइल तो पक्का यूज किया है, वहां सुना होगा. पक्की बात है? ओके, आई गेस आई हैव आल्सो गॉट द रिप्लाईज. पीसी या लैपटॉप और मोबाइल, एब्सोल्युटली करेक्ट. You know Windows is also a OS. We have Linux, also a OS. We have Macintosh, also OS. On mobile we have Android as a OS. We have iOS as a OS. I hope आपने ये सब सुना होगा. नहीं राजू, मोबाइल में 3 होते हैं. टू बी वेरी प्रिसाइज, वी हैव ऑल्सो विंडोज फोन. We also have Windows Phone. Have you heard this?
क्या ये सारे शब्द आपने सुने हुए हैं? तो ये सारे शब्द क्या है? ऑल ऑफ देम आर ओएस। यू नो व्हाट, अब इस ओएस में क्या होता है? ये सारे ओएस आपकी सेवा के लिए ही है। दे ऑल आर गोना गिव यू अ सर्विस, but by configuring the resources. I repeat, by configuring the resources. Let me tell you one thing. वैसे तो मैं आईटी नहीं पढ़ा रहा आपको, बट थोड़ा बहुत आईटी हो जाए आज। Can anybody tell me a basic difference between Windows and Linux? दोनों ओएस है, किसी को इन दोनों के बीच का अंतर माने डिफरेंस पता है? वैसे तो दोनों ही ओएस है, बट इन दोनों के बीच का एक सिंपल सा डिफरेंस जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है, एनीबडी नोज? आई एम नॉट गेटिंग रिप्लाईज, सो मैं समझता हूं कि नहीं आता है। ओके, लेट मी टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस ड्यू टू विच पीपल डिसाइड कि उनको विंडोज डालना है कि लिनक्स, इज दैट द रैम यूजेज, दैट इज द मेमोरी यूजेज। RAM is the memory, random access memory. In Windows, the RAM usage is very less, and in Linux, the RAM usage is very high. तो अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में बहुत हाई रैम है तो आप लिनक्स लगा सकते हो, पर अगर लो रैम है तो भाई विंडोज ही ठीक है। आपको पता है आजकल जमाना उल्टा हो गया है। जमाना ये उल्टा हो गया है कि मोबाइल फोन में रैम आने लगी है 8 GB, और आप लोग के घर पे जो लैपटॉप या पीसी होगा उसकी रैम होती है 2 GB या 4 GB। मानते हो कि नहीं मानते हो? जमाना उल्टा हो गया कि नहीं? गौरी गौरी से हाँ। You know what, sometimes I see people using a phone of a 8 GB or a 16 GB RAM, and उनके घर पे अगर मैं जाके देखता हूं तो उनका जो लैपटॉप होता है या डेस्कटॉप होता है उसकी रैम होती है वो 2 GB 4 GB। तो मुझे ऐसा लगता है यार ये उल्टा कार्यक्रम हो गया है, माने गंगा उल्टी बह रही है भाई। पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है कि लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा होना चाहिए और मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन कम। पर क्योंकि आप अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अगर मोबाइल के साथ बिताओगे तो ऑब्वियसली आप हाई रैम वाला फोन लेंगे, एंड दिस इज गंगा को उल्टा बहना। अब यही पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आज की तारीख में कोई लिनक्स लगाना प्रेफर ही नहीं करता है। आई गेस आपके पास भी डेस्कटॉप या लैपटॉप होगा काफी लोगों के पास। कैन एनीबडी टेल मी कि आपके पास कौन सा ओएस है, विंडोज है कि लिनक्स है? ऑल विथ विंडोज? कलेक्टिवली आंसर विंडोज है, लिनक्स कोई नहीं है। अब उसके बहुत रीजंस हो सकते हैं, बट सबसे बड़ा रीजन है रैम। अब मुझे एक बात बताओ, मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज नथिंग बट रिसोर्स।
और उस रिसोर्स को हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, और ये कॉन्फ़िगर करके हमें ऐसे सारे रिसोर्सेस जैसे कि रैम, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड एंड एक्सेट्रा, इन सारे रिसोर्सेस को कंबाइन करके अगर मुझे कंप्यूटर या फोन रेडी करना है तब मैं बोलूंगा कि एक ओएस क्या काम कर रहा है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर्स द रिसोर्सेस like the examples which I have given for making a product which is a computer or a mobile phone. That is what I wanted to explain you. Let me also give you some examples like retail organizations, hospitals, bus and taxi services, tailor, hotel, dentist, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे के सारे. एंड आई होप दैट अभी आपको सबके ऊपर एग्जाम्पल्स नहीं चाहिए, आप समझ गए हो. इनमें से कोई भी ऐसा वर्ड जिस पे एग्जाम्पल चाहिए आपको, कि हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. इफ यू वांट एनी एग्जाम्पल ऑन रिटेल, हॉस्पिटल, बस, टैक्सी, टेलर, होटल, आई कैन गिव यू, और डेंटिस्ट, and also explain you in detail. But if you require, then if you have understood the point of operating system, I can go ahead. Please explain anyone. And I guess Nehal has asked for retail organization. Okay. Okay. अच्छा, एक बात बताओ, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है. सब लोग पहले ही पूछ रहे हैं. एनीबडी वांट्स समथिंग डिफरेंट? एनीबडी वांट्स समथिंग डिफरेंट? Okay, so let's stick to retail. Now everybody understands a retail organization, और आप एक सबके सब लोग एक रिटेल दुकान पे गए रहोगे, ठीक है. मैं एक एग्जाम्पल देता हूं. यू नो व्हाट, ध्यान से सुनना. जो भी एक लोकल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेट मी टेल यू, गिव यू एग्जांपल ऑफ अ रिटेल ग्रोसरी स्टोर. आई रिपीट, अ रिटेल ग्रोसरी स्टोर. अब मुझे एक बात बताओ, सपोज आई स्टे इन दादर and say I stay in Dadar Prabha Devi and I have a retail shop below my building which is a grocery store, and say I have a very big complex and I stay in a 40-story building, 40 मंजिला मकान में रहता हूं मैं, और काफी बड़ी बहुत सारी विंग्स है, A B C D E F G H. आई नो अभी आप लोग मेरा घर गैस कर रहे हो, जिनेश सर रहते किधर है, बट इट्स ओके. बट शुरू करते हैं आगे, कि अगर मैं रहता हूं और मुझे पता है कि मेरे नीचे एक रिटेल स्टोर है, तो रिटेल स्टोर को भी तो पता है कि मैं किधर लोकेटेड हूं, तो उसको पता है कि चलो मैं दादर में हूं, प्रभा देवी में हूं, एक बहुत बड़े रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में हूं. अब वो ग्रोसरी स्टोर आपको ग्रोसरीज तो देता ही है और आपके डेली नीड्स को सफाइज करता है. अब मान लेते हैं उसका एक फिक्स्ड कस्टमर बेस होता है. नेसेसरी आइटम्स तो सब लोग रखेंगे, बट कोई आइटम्स होता है जो बहुत यूनिक होता है, जो हर शॉप पे नहीं मिलता है. सपोज मेरी बिल्डिंग में
काफी लोग नाचोस खाते हैं। नाचोस का नाम सुना? नाचोस चिप्स होती है। अरे खाने पीने की बात कर रहा हूं भाई, सुबह सुबह 9 बजे की बात है। नाचोस वाचोस तो सुना ही होगा भाई, नाचोस टाकोस। चलो भाई सुना है, आप लोगों ने सर सुना है, खाया भी होगा। तो अब नाचोस है ना, इसको बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेन है इसकी चिप्स। ज्यादातर लोग घर पे नहीं बनाते, चिप्स बाहर से लाते हैं। क्या ये बात मानते हो आप मेरी? That people don't make the chips at home. People tend to buy the chips directly. Please reply fast. Okay, if you agree with this, now मेरे पास चिप्स के ऑप्शन है। नाचोस की चिप्स बालाजी भी बनाता है, और बालाजी की चिप्स 10 रुपीज की आती है, 45 ग्राम्स। ₹10 में 45 ग्राम्स, और अच्छी आती है, कोई बुरी नहीं आती है, अच्छी आती है। पर आपको पता है और कौन सी कंपनी नाचोस की चिप्स बनाती है? मैं आपको यहां दिखा भी देता हूं। भाई नाचोस, आजा भाई नाचोस चिप्स। भाई देखो, प्लीज कैन यू सी दिस नाचोस चिप्स? सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांड है उसमें ये वाली, कॉर्निटोस। आई डोंट नो अगर आप नाचोस के शौकीन हो, वैसे मैं तो पूरे खाने पीने का शौकीन हूं, मुझे तो सबके भाव भी याद रहते हैं। कॉर्निटोस की चिप्स 40 रुपीज की आती है, 60 ग्राम्स। फिर टॉर्टिला चिप्स आती है 100 रुपीज, 50 grams. What I wanted to make you understand is, सपोज अगर मेरा रिटेल ग्रोसरी स्टोर दादर प्रभा देवी एक मल्टी स्टोरे बिल्डिंग में, कॉम्प्लेक्स में है, तो वो क्या करेगा? वो कॉर्निटोस टॉर्टिला रखेगा, बालाजी रखेगा ही नहीं। और अगर मेरा ग्रोसरी स्टोर कोई ऐसे एरिया में है जहां पे लोगों की पेइंग कैपेसिटी कम है, तो वो बालाजी रखेगा, ज्यादा से ज्यादा कॉर्नेटो रखेगा, पर टॉर्टिला तो रखेगा ही नहीं। मींस अगर आपने ये प्रोडक्ट देखा, तो ये प्रोडक्ट के लिए कौन सा प्रोडक्ट मेरे दुकान में मिलना चाहिए, उसके लिए ऑपरेशंस किया मैंने, और वो ऑपरेशन से मुझे मालूम पड़ा कि मुझे कौन से रिसोर्सेस मेरे यहाँ कंबाइन करने हैं ताकि मैं लोगों को सप्लाई कर सकूं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन? एनीबडी अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल? आप बोलो तो पास्ता, पिज्जा, मैं सारे एग्जाम्पल्स ले सकता हूं। अगर भूख लगी है, आप बोलो क्या खाना है, बट एवरीबडी अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल? ओके ग्रेट। Means a operating system is converting input into output to satisfy the customer's wants. And at this stage, I have explained you the retail organization. Same way, I could have given you example either on hospital, bus, taxi, tailor, hotel, dentist. ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है।
You know what? Most of the times, goods and service are associated together. Like अगर आपको कार का ऑयल चेंज करना है तो ऑयल चेंज करना एक सर्विस है, बट ऑयल भी तो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. सिमिलरली अगर आप घर को पेंट करवाते हो तो हाउस पेंटिंग एक सर्विस है, बट पेंट अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल होना चाहिए. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन. एंड दैट्स द रीजन कि यू नीड टू पैकेज इट वेरी वेल. क्योंकि अगर गुड्स और सर्विस को प्रॉपरली पैकेज नहीं किया तो बैंड बच जाएगा. Let me give you example of painting service. Now painting includes the service of painting and the paint. This plus this amounts to total rate per square feet. सपोज मैंने सर्विस लिया पेंट विच इज कॉमन, और मैंने बोला डिस्टेम्पर लगाओ, मेरे घर पे तुम डिस्टेम्पर मार दो, तो टोटल रेट पर स्क्वायर फीट शुड नॉट बी इवन 15 रुपीज अ स्क्वायर फीट. बट वैसे ही मैंने बोला कि भाई तुम पेंट मारो, बट प्लास्टिक पेंट मारो, तो प्लास्टिक पेंट में भी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3. ग्रेड 1 20 रुपीज अ स्क्वायर फीट, ग्रेड 2 30 रुपीज अ स्क्वायर फीट, ग्रेड 3 35 रुपीज अ स्क्वायर फीट. मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे पेंट मारना है, पर मुझे लस्टर का पेंट मारना है, लस्टर. तो बोलेगा 40 रुपीज अ स्क्वायर फीट. बोलेगा नहीं भाई लस्टर नहीं, मुझे पेंट मारना है, मुझे वेलवेट मारना है, तो बोलेगा 50 रुपीज अ स्क्वायर फीट. बोले मुझे पेंट मारना है पर मुझे वेलवेट प्लस टेक्सचर मारना है, तो बोलेगा 80 रुपीज अ स्क्वायर फीट. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? मैंने आपको वेरियस क्वालिटीज ऑफ पेंट बताया. इतने ही क्वालिटी मार्केट में मिलते हैं. इसके अलावा एक छोटा सा है जो मैंने नहीं लिखा है, ऑयल पेंट. बाकी मैंने सब लिख दिया. Are you able to understand my example of painting? तो आपको कंबाइन किसके साथ करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग सवाल होता है. एंड गोइंग अहेड,